द क्रिएटर के लॉन्च के मौके पर मौजूद थी सोनी टीवी के सीरियल सीआईडी की टीम, जिसमें शामिल हैं दयानंद शेट्टी, शिवाजी साथम और भी कई सितारे। It is a unique kind of a title, no doubt about it. And the most happiest part of this particular film, the creator, is my very, very dear friend, more a brother, I would say, Dyanan Shetty. That is, I mean, we all come from the same background of CID. Daya plays Inspector Daya. So, for me, he is a co-producer of the film and he plays the lead role in the film. So, it's a double whammy, kind of a happy thing for me. That is one. Secondly, it's the thought that Mr. Hingonia has put up in the creator is very unique, very idealistic. And it really makes you think, wouldn't it be so wonderful, this world would be so beautiful if this thought that he has tried to portray, what Daya has put up, Dr. Ray has put up, would make such a beautiful world that we live in. There wouldn't be any hatred, there wouldn't be any fight, there wouldn't be any killings. It's just love, love and love. So for me, it is an idealistic thought. I don't know whether when and when it will happen, but I always wish this happens because I belong to this thought that the creator film has put up. So for me, it's a nice film. I wish everybody sees the film rather than going into the technicalities or anything. The thought itself, one should carry it home. And it's also a theatrical, it gives me another perspective to the film. I mean, why this can become a wonderful play also. Because it conveys that it's a universal thought, a universal idealistic thought again. But I hope the world becomes like this sometimes, yeah. दया का हमेशा से हमने रूप देखा था दरवाजा तोड़ते हुए, लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ एक अलग है और सिर्फ एक ही सीन में एक्चुअल जो दया का वो जो खाली दरवाजे नहीं थे उसके बदले में वो विलन थे उनको तोड़ा था. बाकी इज डन अ वंडरफुल जॉब. सडनली यू सी दया इतना युग इतना ये और वो कैसे दिखेगा क्या करेगा. द होल फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ pleasant surprise to see Daya in such a different kind of a portrayal. So for me, again, I come back to the creator. It is a unique title and a unique kind of a film. I think this thought has never been put up in films or in theatre. So all my best wishes for this film, absolutely. And I think people should watch it at least for the thought. As I again say, there are no known faces or no big stars in it. That is all the more so. The film should be watched by everybody. क्या आने वाले दिनों में हम आप सभी को एक साथ में एक नई कोई पिक्चर में देखेंगे? हो सकता है, who knows? There are, I mean, our producers and a few of them are trying to pitch the subject. It can't be same CID again, but yeah, why V3? Most of us would be in that project, and I'm looking forward to it. I just pray that it happens. Is it so? Can we see something new, just like CID, the same concept? Because people still want to see these, like all the things which was before. They were like very excited what will be the outcome, what will be the next year. And very honestly, see, we also are like how you are a common audience. Everybody loves the thriller. Everybody loves the mystery. It's just the way it is presented. It's like the same thing. दाल चावल अलग अलग किस तरह से पेश करोगे वो है. So it appeals to the palate. So definitely it will be in a different kind of a format.
that is what I hope. Nothing has fructified or nothing concrete has come. But then I definitely know that there are guys very close to us who are trying to bring it back, bring all of us back. May not be CID, but it could be the same kind of genre, same subject, but in different this. Is there any new project which will be coming up here which you like to share? Yeah, for me, Yeah. yeah, I've done a film called Mahim. I don't know whether it will be in OTT or in the film. It's a lovely subject. Again, a unique kind of a character, not the same inspector kind of a thing. Then there's another wonderful, again, unique kind of a film in Marathi called Bamboo. Again, it's a different kind of a character. So I'm enjoying myself. क्रिएटर बेसिकली इज सिनोनिम विद जो हमारे रचयिता हैं, जो इस पृथ्वी को बनाते हैं. ही इज़ अ क्रिएटर. भगवान शिव बोल सकते हैं. तो वो क्रिएटर है, वो करता धरता है, हर चीज़ वही करता है. हम लोग बाकी के जो आडंबर है लाइफ में, धर्म, मज़हब, नाम, सोच, विचार के हिसाब से हम लोग बटे हुए हैं. तो वो क्रिएटर है, उसने हम में ये सब नहीं डाला, हम लोगों ने आपस में ये सब डेवलप किया है. इस फिल्म में भी यही एक लेसन है लोगों को सीखने के लिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठें. आज की तारीख में जो हो रहा है चारों तरफ, पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटॉलरेंट हो गए लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति. क्यों हो रहा है ये? सिर्फ यही एक मैसेज है कि भाई हम लोग थोड़ा वाइड थॉट रखें, अपने जितना विजन है उसको थोड़ा और वाइड करें और थोड़ा ग्राउंड पे रह के ज़मीनी स्तर पे सोचें. कुछ नहीं है, कल को सब मरने वाले हैं, फिर भी हम आपस में मारकाट लगे करने में लगे हैं. ये नहीं होना चाहिए. दैट्स अ थॉट. जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा, आपका एक नया ही रूप दिख रहा है. लाइक लोग ऐसे ही दिख रहे थे. पहले जब दया सर को हम देखते थे CID में, उसके बाद ये कुछ अलग ही नया लुक है. कितना आपको अच्छा लगा है ये किरदार? मतलब लुक, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर. वो जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मतलब कम्युनल राइट्स में काफ़ी उसका नुकसान हुआ, उसके बीवी उसके बच्चे मारे गए हैं, तब से वो पागल है. तो वो सब दुनिया से मतलब वो लिटरली अलूफ है. अमेरिका में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको कोई सेंस नहीं है, बाल वाल नहीं काट रहे, तो बड़े हुए. और लुक को लेके काफ़ी लोग पॉजिटिव है, बोलते हैं अच्छा है, काफ़ी बोलता है यू नीड अ ट्रिम. तो डिपेंड्स, किसी को शायद पसंद आएगा, किसी को नहीं, बट दैट इज़ द लुक ऑफ द कैरेक्टर. आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, फ्रेंड्स एंड फैमिली के क्या रिएक्शंस थे? बिकॉज आज भी आपके सीरियल में बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं. हाँ, मतलब दे आर कीनली वेटिंग कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, देखना चाहते हैं वो फिल्म. तो लेट्स सी, फैंस को वो जल्दी मिले, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज़ हो. CID के बाद फिर से लोगों के अंदर वही क्रेज़ है कि कब एक साथ आप सबकी जिस तरीके से टीम होती थी फिर से कब देखने मिलेगा. क्या कुछ आप कहना चाहोगे? टीम साथ में आएगी, बड़ा CID नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो किसी का कॉपीराइट है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं. टीम साथ में आएगी, हैज़ कॉप्स, हैज़ इन्वेस्टिगेटिंग कॉप्स, बट ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, और उसको करेंगे बहुत जल्द. मतलब अभी थोड़ा माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, तो बहुत जल्दी करेंगे. क्या फिर से एक नया अंदाज देखने मिलेगा दया का, जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि दरवाज़ा तोड़ने वाला? अब ये तो व्यूअर्स के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है, कैसे पसंद करते हैं. हम अपना 100% देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे. और एक कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, वो दिल का रिश्ता है. उन्हीं लोगों ने हमको अभी तक सस्टेन किया है, आगे भी वही करेंगे. आने वाले दिनों में और भी कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आपके देखने मिलेंगे? प्रोजेक्ट्स एक दो फिल्में हैं, एक हिंदी फिल्म है, इसके अलावा और एक मराठी फिल्म भी की है मैंने, वो भी शायद 1-2-3 महीने के अंदर रिलीज़ होनी चाहिए. लेट्स सी. लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आपके अंदाज में? फैंस के लिए वही है, मैं तो मतलब हमेशा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्हीं की वजह से हम लोग 21 साल CID को सस्टेन कर सके, और उन्हीं की वजह से हम लोग हैं. आगे भी वही हैं हमारे करता धरता. फिल्में करते रहेंगे, वेब सीरीज़ है, कोई भी शोज़ है, हम आप ही के लिए करते हैं. आप पसंद करेंगे तो हम सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज कांट हेल्प. One word for it is different. It's a movie with a mission. It's a movie with a very good message, and it's made beautifully. And I think each one of you should go and watch this film, because बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं. It's got an ensemble cast, बहुत बढ़िया cast है इसकी. And I've worked with Praveen, and I always feel कि नए लोगों के साथ मैं हमेशा काम करती हूँ, because Praveen I've acted as an actor with, and when he approached me for the film,
I agreed to do it only because of him. मेरा एक guest appearance है फिल्म में, but nonetheless I felt equally involved in the film because ऐसी अच्छी फिल्में बननी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। और आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये फिल्म बहुत ही वैलिड है और हर किसी को देखनी चाहिए। What is the best part in this film? Because every films give us some of the message. The best part about this film is of course the ensemble cast, the storyline, the performances and the message. Is it so we are going to see you any more like in the pipeline, any projects which you Oh yes, lots in the pipeline, lots in the pipeline. In the next coming year, there are about 7 to 8 film releases. There's 2 webs. Then Amazon Pay, there's a short film. Then there is a music video. There's a lot of work coming up. I'm also looking forward क्योंकि जो अब तक रुका हुआ था because COVID की वजह से काफ़ी चीज़ें जो रुकी हुई थी, and there are good releases. I have my fingers crossed. I'm waiting. मैंने भी अभी टीवी से स्टेप आउट किया है टोटली, तो मेरे लिए भी एक नया एक क्या उसको बोलते हैं, नॉट अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए एक नया वर्ल्ड है वेयर आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ। वेब है, देयर सो मच टू डू, देयर सो मच टू एक्सप्लोर। बहुत मज़ा आ रहा है। जब आपने बोला टीवी से अभी ये ओटीटी वाले वेब सीरीज एंड ऑल, कितना डिफरेंशिएट होता है? टीवी इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट। टीवी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अब मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने इतने साल कैसे कर लिया, क्योंकि अब मेरे में शायद हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है इतना टाइम देने का। मैंने अभी कुछ किया था अपने फ्रेंड्स के लिए, बट नहीं, आई फील अभी थोड़ा सा रिजुविनेट करना है अपने आप को। आई वांट टू डू स्मॉलर थिंग्स जो 7, 8, 10 दिनों में ख़त्म हो जाए, एक प्रोजेक्ट 15 दिनों में ख़त्म हो जाए। टीवी इज़ अ कमिटमेंट जो बहुत शिद्दत से आपको उसको निभाना पड़ता है, और अब शायद अब मेरा माइंडसेट वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं टीवी को गुड बाय कह रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल एक आगे बढ़ने की उम्मीद, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि इतने सालों से टीवी किया तो सब कुछ आता है, लेकिन वंस यू स्टेप इनटू द न्यू वर्ल्ड यू रियलाइज दिस सो मच मोर टू लर्न। तो इस उम्र में कुछ सीखने को मिल रहा है, सो आई एम फीलिंग रियली गुड। जैसा कि आपने ट्रेलर देखा और आप अगर टाइम से आए होंगे तो फिल्म भी आपने देखी होगी। द क्रिएटर जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और अगर दुनिया में हो जाए कि नो बाउंड्रीज, नो लैंग्वेज, नो धर्म, सब एक सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है, और एक ही लाइक विदाउट बाउंड्रीज, लाइक आज़ाद पंछी की तरह अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाए तो मतलब बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। एक दुनिया में जीने का मज़ा आ जाए, इस तरह की चीज़ें अगर हो जाए तो थोड़ा सा सिस्टम को और थोड़ा सा दुनिया को चेंज करने का एक जो बीड़ा उठाया वो इस फिल्म में है। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। जी, आई एम श्योर कि लोगों तक अगर ये पहुँचेगी तो डेफिनेटली उनका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा, और उनके दिमाग में भी है आगा कि नहीं यार, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो बेकार की हैं। जैसे इसमें एक फिल्म में एक डायलॉग भी है कि अगर धर्म से बड़ा कुछ, मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है, सारे मतलब धर्म को मार के अगर मानव को बचाया जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ऑडियंस में अगर ये लोगों तक पहुंचेगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी हम आपके और भी कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट? हाँ, इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। उसमें जैसे ये है द क्रिएटर है, उसके बाद पठान एक फ़िल्म है यशराज की, एक हरि ओम हरि एक फ़िल्म है, एक उधमगढ़ करके एक सीरीज़ है, एक और फिल्म है बगावत। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं आने वाले हैं।